ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 13 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, భూమిలో పాతినటువంటి విత్తనము తన దేహాన్ని శిథిలము చేసుకున్నప్పుడే మహావృక్షంగా మారగలదు. మహావృక్షంగా మారినప్పుడే ఫలమును నీకు అందించగలదు. కనుక నీ మొట్టమొదట నీ అహంకారం అనేటువంటి విత్తనమును శిథిలం చేసుకున్నప్పుడే నీ జీవితం అనేటువంటి వృక్షము లోపల జ్ఞాన ఫలమును నీవు అందుకోగలవు. ఈ అహంకారమునకు స్థానం ఎక్కడిది? దేని నుంచి నీవు అహంకారపడుతున్నావు? మానవత్వంలో ఉండినటువంటి అజ్ఞానం అదే మొట్టమొదటిది. धरती में बोया बीज अपने शरीर को शिथिल करने पर ही महावृक्ष बन सकता है। महावृक्ष के बनने पर ही वह तुम्हें फल दे सकता है। अतः सबसे पहले तुम अपने अहंकार रूपी बीज को शिथिल करो, तभी वह जीवन रूपी वृक्ष में तुम्हें ज्ञान के फल देगा। इस अहंकार के लिए स्थान ही कहाँ है? किसे देखकर तुम अहंकार कर रहे हो? मानव जीवन में निहित पहला अज्ञान वही है। ఈ అహంకారమునకు స్థానం ఎక్కడో, దీని పుట్టుక స్థానం ఎక్కడో, ఇది అంత్యమయ్యేటువంటి స్థానం ఎక్కడో అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి వ్యక్తి కూడా నువ్వు విచారించాలి. బస్సు గంటకు 40 మైళ్ళు 50 మైళ్ళు ప్రయాణం చేస్తుంది. ఏరోప్లేను ఒక 300 400 లేక 500 ప్రయాణం చేస్తుంది. అయితే జగత్తునందు కాంతి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుండాలి. దీన్ని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అశాంతిలోని ప్రకాంతి, ప్రకాంతిలోని పరంజ్యోతి అని, అశాంతిలోని ప్రశాంతి, ప్రశాంతిలోని పరంజ్యోతి, పరంజ్యోతి పరమాత్మ స్వరూపం. ఈ తత్వం లోపల అశాంతిలోనే ప్రశాంతి ఉంటుండాలి, ప్రశాంతిలోనే ప్రకాంతి ఉంటుండాలి. ఆ ప్రకాంతియే పరంజ్యోతి అన్నారు. प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि इस अहंकार का स्थान क्या है, इसका जन्म स्थान कहाँ है, यह कहाँ अंत होने वाला है। एक बस प्रति घंटा 40 या 50 मील यात्रा करती है। हवाई जहाज 300 या 400 या 500 मील यात्रा करता है। परंतु इस जगत में कांति है। इस आध्यात्मिक मार्ग में अशांति में निहित प्रकांति, प्रकांति में निहित परंज्योति और परंज्योति ही परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। इस तत्व के अनुसार अशांति में ही प्रशांति निहित है, प्रशांति में ही प्रकांति है। इस प्रकांति को ही परंज्योति कहा गया है। ఈ లౌకికమైన జగత్తులో కాంతి అనేటువంటిది ఒక గంటకు 67 కోట్ల మైళ్ళు ప్రయాణం చేస్తుంటుండాలి. ఈ విధంగా ప్రయాణం చేస్తుంటే ఒక సంవత్సరమునకు లైట్ ఇయర్ అంటారు దీన్ని.
ఒక సంవత్సరమునకు ఇంచుమించు 6 లక్షల కోట్ల మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేస్తున్నారు. మనకు కనిపించేటువంటి సూర్యుడు మనకు అతి సమీపంలో ఉండినట్టుగా భావిస్తున్నాం. ఇంచుమించు మన భూమికి సూర్యునికి 9 కోట్ల చిల్లర మైళ్ళ దూరం ఉంటుండాలి. ఈ సూర్యుడే మనకి ఎంతో ప్రకాశంగాను, సూర్యుని యొక్క తేజస్సు ఎంతో మిరుమిట్లు కొలుపుతూ ఉంటుండాలి. ఇది ఒక్క సూర్యుని యొక్క కాంతి మాత్రమే. అయితే నక్షత్రాలు ఉంటున్నాయి. ఇవి 4 సంవత్సరముల కాంతి దూరంగా ఉంటుండాలి. అనగా 23-24 లక్షల కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో ఉంటున్నాయి నక్షత్రాలు. మనకు కనిపించేది ఒక చుక్క ప్రక్క పక్కన ఉండినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుండాలి. కానీ ఒక్కొక్క నక్షత్రమునకు కోట్ల మైళ్ళు దూరం ఉంటుండాలి. इस लौकिक जगत में निहित कांति 1 घंटे में 67 करोड़ मील की दूरी तय कर रही है. इसी गति से यात्रा करें तो 1 वर्ष में इसे लाइट ईयर कहते हैं. प्रकाश 6 लाख करोड़ मील की दूरी तय करता है. हमें जो सूरज दिखाई पड़ रहा है उसे हम बहुत निकट में स्थित मान रहे हैं. लगभग हमारी धरती और सूरज के बीच की दूरी 9 करोड़ मील है. यह सूरज अत्यंत प्रकाशमान और उसका तेज चौंधिया देने वाला है. यह मात्र एक सूरज का प्रकाश है, परंतु तारे हैं, ये 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं. अर्थात तारे लगभग 23-24 लाख करोड़ मील की दूरी पर स्थित हैं. हमें ये तारे अगल बगल में स्थित जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक तारे और दूसरे तारे के बीच की दूरी करोड़ों मील है. మనం ఈ భూమి నుంచి చూసేటప్పటికీ ఏదో పాలారబోసినట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి. మనకు కనిపించేటువంటి నక్షత్రములే కొన్ని కోట్లకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా మనకు కనిపించినటువంటివి ఎన్నో ఉంటున్నాయి. ఇలాంటి కోట్లకు మైళ్ళ దూరము, కోట్ల విస్తీర్ణము, కోట్లమైనటువంటి నక్షత్రములు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క జగత్తు లోపల ఈ భూమండలము ఎంత మాత్రంది. ఈ సూర్యమండలములో ఈ యొక్క భూగోళం ఎంతది. ఈ భూగోళం లోపల భారతదేశం ఎంత చిన్నది. ఈ భారతదేశంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎట్టిది. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అనంతపురం జిల్లా ఎంతది. ఈ అనంతపురం జిల్లా లోపల మన గ్రామం ఎంత చిన్నది. మన గ్రామంలో నీవెంతటి వాడు. ఎవరిని చూచి నీవు గర్వపడుతున్నావు. దేనిని చూచి నీకు అహంకారం వస్తుంటుండాలి. ఈ విశాలమైన జగత్తును చూస్తే నీకు అహంకారం రావడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉన్నదా? जब हम इस धरती से देखते हैं तो लगता है कि वहां दूध फैलाया गया है. हमें जो तारे दिखाई पड़ते हैं वे करोड़ों करोड़ हैं. हम जिन्हें देख नहीं पा रहे हैं वे भी अनेक हैं. करोड़ों मील की दूरी, करोड़ों मील का फैलाव और करोड़ों तारों से युक्त इस जगत में यह भूमंडल कितना होगा. इस सूर्यमंडल में भूमंडल कितना होगा. इस भूमंडल में भारत देश कितना छोटा है. इस भारत देश में आंध्र राज्य कैसा है. इस आंध्र राज्य में अनंतपुर जिला कितना है. इस अनंतपुर जिले में हमारा गांव कितना छोटा है. हमारे गांव में तुम्हारा कद क्या है. किसे देखकर तुम घमंड कर रहे हो. क्या देखकर तुम अहंकार कर रहे हो. इस विशाल जगत को देखने के बाद तुम्हारे पास अहंकार करने का क्या कोई अवसर है. కనుక విశ్వం యొక్క స్వరూపాన్ని కానీ భూమండలం యొక్క విషయాన్ని కానీ తెలుసుకోలేనటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ఈ అజ్ఞానముకు గురి అయి అహంకారమును పెంచుకుంటున్నాడు. పోనీ ఈ దేహమును ఏమైనా చూచి నీవు అహంకారపడుతున్నావా. దేహము పాంచభౌతికము. దేహము కూలక తప్పదెప్పుడు. దేహి నిరామయుండు గణుతింపక దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధనలు ముద్రలు లేవు. పిచ్చివాడ మలినపు కొంప రోగముల మ్రగ్గడు సేవక గంప జాత సంచలనము పొందు దుంప భవసాగర మీదకి లేని కంప ఈ మే నుచ్చలమని నమ్మబోకు మనసా హరిపాదములు ఆశ్రయించవే. इस विश्व के स्वरूप और भूमंडल से संबंधित विषयों से जो अपरिचित है
वही इस अज्ञान के वशीभूत होकर अहंकार को बढ़ा रहा है। क्या इस देह को देखकर अहंकार कर रहे हो? पंचभूतों की है यह देह बनी, अवश्य ही यह तो ढह जाएगी। देही इसका है निरामय जानो, बंधन मुक्त है जो विचारने से। अरे पगले, मलिनता का घर है यह और टोकरी रोगों की यह। भवसागर न तरे यह, जन्मे सतत कंद यह। करो न इस पर विश्वास, ले हरि चरणों का आश्रय। కనుక దేహ సంబంధమైనటువంటి యొక్క దీన్ని నీవు ఆధారంగా తీసుకుంటామంటే ఇది కేవలం జడమైనటువంటిది. ఈ దేహం ఏ రీతిగా తయారవుతుంటుండాలి? 7 బకెట్ల నీళ్లు, ఏవి నీళ్లు? సున్నపు నీళ్లు. 2 ఇంచుల ప్రమాణంతో కలిగినటువంటి 4 మూలికలు, 1100 మ్యాచ్ స్టిక్స్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆ ముందు ఉన్నటువంటి మందు, 4 పెన్సిల్స్ లో ఉండినటువంటి యొక్క సీసము, 2 లక్స్ సోపులు, ఇవన్నీ చేరితే ఒక దేహం తయారవుతుండాలి. మన చున్నమి ఈ రక్తంగా మారిపోతుంటుండాలి. చున్నపు నీళ్లు దీంట్లోనే ఐరన్ ఉంటుండాలి. देह के स्तर पर विचारें तो यह जड़ मात्र है। यह देह कैसे तैयार हो रही है? 7 बाल्टी पानी, वह भी कैसा पानी? चूने का पानी। 2 इंच लंबे 4 कील, 1100 माचिस की तीलियों में आगे लगा भास्वर, 4 पेंसिल में लगा सीसा, लक्स के 2 साबुन, इन सब के जुड़ने से एक देह तैयार हो रही है। देह का चूने का पानी ही खून बन रहा है, इसी में आयरन भी है। ఈ విధంగా జడమైనటువంటి పదార్థంతో ఏర్పడినటువంటి ఈ దేహం జడం కాక చైతన్యం ఎట్టవుతుంది. కనుకనే ఇది దేహము అన్నారు. ఈ దేహి అనేటువంటి వాడు దేహంలో ఉండటం చేతనే ఇది నడుస్తూ ఉంటుండాలి. అదొక వాల్ క్లాక్. అక్కడ 3 పిన్నులు ఉంటున్నాయి. ఒకటి సెకండ్ది, రెండవది మినిట్స్ది, మూడవది గంటలది. కీ ఇచ్చేస్తే 3 తిరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. ఎంతవరకు ఇవి తిరుగుతాయి? కీ ఉండినంత వరకు తిరుగుతాయి. కీ నిలిచిపోతానే దాన్ని దీన్ని అది కలుచుకోదు, ఎక్కడిదక్కడే నిలిచిపోతాయి. इस प्रकार जड़ पदार्थों से बनी यह देह जड़ न होगी तो चैतन्य कैसे होगा? अतः इसे देह कहा गया है। देही के इसमें रहने के कारण यह चल रही है। वह एक वाल क्लॉक है, उसमें 3 सुइयां हैं। एक सेकंड्स की है, दूसरी मिनट्स की है और तीसरी घंटों की है। चाबी देने पर तीनों घूम रही हैं। कब तक ये घूमेंगी? चाबी के रहने तक घूमेंगी। चाबी के खत्म होते ही ये आपस में सट नहीं जाती हैं, जहां की तहां थम जाती हैं। మన హృదయం అనేటువంటిది ఒక వాల్. ఈ హృదయానికి బాడీ అనేటువంటి వాల్ క్లాక్ తగిలిచ్చారు. అక్కడ శ్వాసమే కీ, మన కర్మలే సెకండ్లు, మన భావములే మినిట్స్, మన ఆనందమే ఇందులో అవర్స్. అయితే కర్మలు ఎందుకు చేయాలి అని సెకండ్స్ ముళ్ళు 60 ఇండ్లు క్విక్గా తిరిగి వచ్చేసేస్తుంది. 60 ఇండ్లు ఈ సెకండ్ ముళ్ళు తిరిగేటప్పటికీ మినిట్స్ మిల్లు 1 ఇంటికి వస్తుంది. మినిట్స్ ముళ్ళు 60 ఇండ్లు చుట్టేటప్పటికి గంట ఇల్లు 1 ఇంటికి వచ్చేసేస్తుంది. అయితే సెకండ్ ముళ్ళు, మినిట్స్ ముళ్ళు తిరిగేది మనకు కనిపిస్తుండాలి, అవర్స్ ముళ్ళు తిరిగేది కనిపించటం లేదు. అక్కడే మనలో ఉండినటువంటి యొక్క సూక్ష్మత. అయితే ఈ 3 కూడాను గంటకు ఒక తూరి 3 కలుస్తున్నాయి. ఇదే జీవేశ్వర ప్రకృతి అని. हमारा हृदय एक वॉल है जिस पर बॉडी रूपी क्लॉक लगाया गया है। इसमें श्वास ही चाबी है, इसमें हमारे कर्म ही सेकंड्स हैं, हमारी भावनाएं ही मिनट्स हैं और हमारा आनंद ही आवर्स हैं। फिर हमें कर्म क्यों करना है? सेकंड्स की सुई 60 घरों में घूम घूम कर जल्दी से आ जाती है। सेकंड्स की सुई 60 घरों में घूमने तक
मिनट्स की सुई एक घर में पहुंचती है। मिनट्स की सुई के 60 घरों में घूमकर आने तक घंटों की सुई एक घर में पहुंचती है। परंतु सेकंड्स और मिनट्स की सुइयों का घूमना हमें दिखाई पड़ रहा है, आवर्स की सुई का घूमना दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी में एक सूक्ष्म तथ्य है। तीनों सुइयां घंटे में एक बार मिलती हैं। इसे ही जीवेश्वर प्रकृति कहा गया है। माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला नंद कुमारा नवनीत चोरा राधा हृदय विहारा भक्तोद्धार बाल गोपाल गिरिधर गोपाला परिपाला गोपीलोला गोवर्धन गिरिधारा नंद कुमारा सुंदराकारा राधा हृदय विहारा मुरली लोला मुनि जन पाला गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम चमत्कार से संस्कार के रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। आज प्रस्तुत कथा का शीर्षक है सुख करता दुख हरता। बाबा को सबसे अधिक प्रसन्नता गरीब और बेसहारा लोगों की सच्ची सेवा करने से होती है, और जब ऐसी सेवा की जाती है तो भगवान की प्रसन्नता एक अकल्पनीय चमत्कार के रूप में प्रकट होती है। तमिलनाडु में ऊटी से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है मेलकोवटी। स्वामी के 80वें जन्म दिवस पर सेवा पुष्प के रूप में अर्पित करने के लिए साईं भक्तों ने इस गांव को गोद लिया, परंतु तब उन्हें यह अनुमान भी नहीं था कि वास्तव में यह स्वामी की दिव्य योजना थी और जीवन को बदल देने वाला एक चमत्कार होने वाला था। ऊटी साईं समिति के सदस्यों ने इस गांव में जनवरी 2003 में सेवा की गतिविधियां शुरू की। सबसे पहले उन्होंने धुंध आच्छादित पहाड़ियों से घिरे इस मनोरम गांव में सुबह सवेरे के समय नगर संकीर्तन शुरू किया। भजन गायन के बाद वे गांव में हर एक घर में जाकर प्रसाद बांटते थे। इस दौरान उन्हें एक गली के छोर पर जर्जर खस्ता हालत में अलग थलग पड़ा एक घर दिखाई दिया। वहां अंदर जाकर उन्होंने जो हाल देखा, इससे वे बड़े विचलित और दुखी हो गए। वहां ठंडे पुराने फर्श पर एक बूढ़ी लाचार महिला पड़ी हुई थी। उन्होंने घर के भीतर जहां भी देखा, उन्हें घोर गरीबी और खस्ता हाली नजर आई। कीर्तन मंडली के साथ आए कुछ गांव वासियों ने बताया कि यह बूढ़ी लाचार महिला बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसके माता पिता जो थोड़ी बहुत जमीन छोड़ गए थे, उसी से वो अपना गुजर बसर करती थी। मगर जब वो 30 साल की थी तो उस पर अचानक एक और मुसीबत टूट पड़ी। उसके बाजू और टांगे बेकार हो गए और वो पूरी तरह लाचार हो गई। उस वृद्धा की ये दारुण दशा सुनकर स्वामी के भक्तों ने तुरंत उसी समय उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। बिना कोई विलंब किए तुरंत उस वृद्धा के लिए एक चारपाई, कंबल तथा बिस्तर लाया गया और उसे फर्श से उठाकर चारपाई पर लिटाया गया। फिर उन्होंने तय किया कि प्रतिदिन उनमें से कोई एक व्यक्ति उस महिला के पास रहकर उसकी देखभाल व सेवा करेगा। और इस तरह एकजुट होकर साईं भक्तों ने एक निस्वार्थ व संगठित सेवा की शुरुआत की। ये सेवा कई महीनों तक बिना किसी रुकावट के चलती रही। गांव के लोग बाबा के भक्तों की इस निस्वार्थ व प्रेम भरी सेवा पर हैरान थे। फिर गांव वासियों को इस वृद्धा की उपेक्षा करते रहने पर अपराध बोध होने लगा। उन्होंने इस बारे में विचार करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई। बैठक में सबने मुक्त कंठ से ऊटी साईं समिति के निस्वार्थ सेवा भाव की बड़ी सराहना की। ये साईं भक्त वृद्धा की देखभाल के लिए हर रोज हर हालत में ऊटी से गांव तक 20 किलोमीटर आते जाते थे और उनके सेवा भाव में कभी कोई कमी नहीं आई। इस सेवा भाव से प्रेरित होकर गांव वासियों ने यह तय किया कि अब इस असहाय वृद्धा की सेवा और देखभाल वे खुद करेंगे और अब वो वृद्धा गांव वासियों की जिम्मेदारी होगी।
30 ग्रामवासी माह के पूरे 30 दिवस सेवा देने के लिए आगे आए और धीरे धीरे इस सेवा के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सी चालू हो गई। फिर ग्रामवासियों ने उस वृद्धा के घर को भी ठीक करने का निश्चय किया। घर की दीवारों की पुताई की गई, फर्श को पक्का किया गया और घर की छत की मरम्मत की गई। घर की रसोई की भी मरम्मत कर उस रसोई में ही वृद्धा के लिए ग्रामवासी प्रतिदिन ताजा व गर्म भोजन भी पकाने लगे। बीमार वृद्ध महिला को अब गर्म खुराक खाने के लिए मिलने लगी, जो कि ऊटी के ठंडे मौसम के लिहाज से उसके लिए बड़ी ही लाभदायक थी। वृद्धा का पुराना और खस्ताहाल घर अब लाभदायक कार्यों का शुभ स्थान बन गया था। मिल्कावटी गांव, जो पहले एकजुट नहीं था, अब वो निस्वार्थ सेवा भावना से एकजुट हो गया था। सितंबर 2004 में नीलगिरी जिले में साईं समितियों ने 80 गांवों में भजन गायन का कार्यक्रम तय किया, जिसमें एक दिन मिल्कावटी गांव की बारी आई। सारे ग्रामवासियों ने एक स्वर में सर्वसम्मति से कहा कि भजन के कार्यक्रम का आयोजन इस वृद्धा के घर में होना चाहिए। उस वृद्धा के घर के सामने एक सुंदर शामियाना लगाया गया और बड़ी तन्मयता से भजनों का गायन होने लगा। पूरे गांव के लोग इसमें शामिल हुए। वृद्धा अपने कमरे में लेटे हुए भजन सुन रही थी। इसी दौरान एक असाधारण व अद्भुत चमत्कार हुआ। वो वृद्ध बीमार महिला, जो पिछले 20 सालों से हाथों व पांव से लाचार थी और बिस्तर पर असहाय पड़ी हुई थी, अचानक वो बिना किसी मदद के एकदम बिस्तर पर उठकर बैठ गई। दरअसल कमरे के बाहर भजन गा रहे भक्तों को पता ही नहीं चला कि अंदर कमरे में क्या हो रहा था। फिर वो महिला धीरे धीरे उस स्थान पर चलकर जा पहुंची जहां भजन चल रहा था। भक्तजन भजनों में इतने मग्न थे कि कई लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वो वृद्धा वहां आ गई और वहां पहुंचकर उसने श्रद्धा व भक्ति से अपनी बाहें फैला दी और बाबा के दरबार में झूमने लगी। समस्त भक्तजन ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां उपस्थित सभी लोग निशब्द हो गए। तब उस महिला ने बताया कि पिछली रात बाबा ने सपने में उसे दर्शन दिए और उसके हाथों और पैरों की मालिश की और उन अंगों का लकवा एकाएक सदा के लिए दूर हो गया। सभी भक्तजन ये सुनकर स्तब्ध रह गए और फिर खुशी और उत्साह से झूम उठे। वहां के ग्राम प्रधान, जो शराब का सेवन करते थे, वे इस चमत्कार से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत प्रण लिया कि वो अब कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बाबा इस सुदूर गांव में अपने भक्तों के माध्यम से पहुंचे और अपनी अलौकिक शक्ति से उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि किस प्रकार एकजुटता और पवित्रता की भावना से की गई सेवा से भगवान की दिव्य कृपा और अनुग्रह को प्राप्त किया जा सकता है। बाबा ने यही विश्वास, यही सच्चाई हम सभी को बार बार महसूस कराई है ना? आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे चमत्कार से संस्कार के रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से ली गई एक कड़ी। आज प्रस्तुत कथा का शीर्षक था सुख करता दुख हरता। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं।
इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।